Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. Today we are going to discuss another important topic of your demand theory या माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन से हम प्रोडक्शन फंक्शन आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारा आउटपुट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या हमारा जो प्रोड्यूस होता है, इसके लिए हमें इनपुट्स चाहिए। वी नीड लैंड, वी नीड लेबर, वी नीड कैपिटल, और ये तीन चीज़ें वेल नोन इनपुट्स हैं, कॉमन इनपुट्स हैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। एज ए प्रोड्यूसर you would always be interested to know how much labor and capital and other inputs are required to produce a given quantity of a commodity. You may find, for example, 10 units of capital and 5 units of labor are required to produce 100 units of a commodity, है ना। 10 यूनिट्स कैपिटल चाहिए, 5 यूनिट्स लेबर चाहिए, 100 यूनिट्स किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और जो रिलेशनशिप है, इट इज़ दिस रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स, दैट इज 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, एंड फिजिकल आउटपुट, दैट इज 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, विच इन इकोनॉमिक्स is known as production function. आप समझ रहे हैं? The relationship between physical inputs and physical output, physical inputs and physical output of a commodity is termed as production function in economics. इसी तरह you would be interested to know how much output behaves or by what rate it increases in response to increase in one particular input or all inputs. Such questions are also addressed with reference to the study of production function. देखिए, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, it simply means the functional relationship, between physical inputs and physical output of a commodity. In other words, it's the technological relationship. It's the technological relationship between a firm's output and the material factors of production, that's input. It is expressed as Qx is the function of L and K. That is, जो फिजिकल आउटपुट हमारा है ऑफ कमोडिटी X is the function of units of labor or input, physical inputs of labor and physical inputs of capital, right? हम एज्यूम यहाँ करते हैं कि हमारे पास जो इनपुट्स है सिर्फ लेबर और कैपिटल है, तो इस सूरत में हमारा प्रोडक्शन फंक्शन विल बी like this. Production function, that's our output, is the function of inputs. हमारे inputs लेबर और कैपिटल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स इनपुट्स। यहाँ आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इट डज नॉट एस्टेब्लिश एनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप. It only establishes a technical relationship between inputs and output, like 10 workers working 8 hours a day on a set of 2 specified machines will yield the maximum output per worker. It's the technical relationship. आप समझ रहे हैं? Only the technical relationship. Courtesy, a prominent economics, says that the production function is purely a technical relationship
which connects factor inputs and output, right? So in simple words we can say that production function simply means the functional relationship between inputs and physical output of a commodity, or it's the technological relationship between a firm's production and the material factors of production, that's inputs and output, right? जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट्स mainly of two types, दो टाइप्स का है ये. We have constant proportion type production function and variable proportion type production function. चलिए पहले हम constant proportion type को डिस्कस करते हैं. देखिए इन constant production function or constant proportion type production function, all inputs continue to be used in some constant proportion, no matter what the level of output is. Thus, if हमारे दो इनपुट्स हैं लेबर एंड कैपिटल, और अगर इनको हम 4:1 रेशो में इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स 4 यूनिट्स ऑफ लेबर वर्किंग ऑन 1 मशीन, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, ये जो रेशो है दैट्स 4:1, it will continue to remain same. That is, the inputs are increased in the constant proportion. The ratio will continue to be constant for different levels of output. देखिए यहां आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है. जब हम सभी इनपुट्स को, ऑल इनपुट्स को चेंज करते हैं इन द कांस्टेंट रेशियो, अगर हमारी पास 8 वर्कर्स working on 2 machines, that is ratio is same. 12 workers working on 3 machines, ratio will again remain same. जब ऐसा हो, जब हम सभी इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो इस सूरत में we are changing the scale of production. Scale of production हम चेंज करते हैं. स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? स्केल ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए फर्म. प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए फर्म. लार्ज स्केल प्रोडक्शन implies high production capacity. Small scale production implies low production capacity. जब एक फर्म शिफ्ट करती है from small scale to large scale, it is shifting from a small plant to a big plant. But very important it is to note here that this is possible only in the long run. सिर्फ लॉन्ग रन में हम स्केल चेंज कर सकते हैं. In fact, the very definition of long run is that it's a period of time during which the scale of production or the size of the plant or प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन बी चेंज्ड. दूसरी तरफ शॉर्ट रन हमारे पास ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम स्केल को चेंज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ हम एक फैसला ले सकते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है इज ओनली अ लॉन्ग पीरियड पॉसिबिलिटी, लॉन्ग पीरियड पॉसिबिलिटी, नॉट ए शॉर्ट पीरियड पॉसिबिलिटी, राइट. तो दूसरा जो प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा, इट्स वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. इन दिस वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट रेशियो टेंड्स टू चेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट. जैसे पहले हमारा 4:1 रेशियो था, ये हमारा 4:2 हो सकता है, 4:3 हो सकता है, 4:4 हो सकता है. Thus, if labor and capital are the two inputs and they are used in the same proportion, that is 4:1, then this proportion tends to change with change in the level of output. तो हमने यहाँ 4:1 था, 4:2 हो गया, या 5:1, 4:1 था, अब हमने 5:2 किया, 6:2 किया. पहले अर्लियर 4 वर्कर्स एक मशीन पे काम कर रहे थे, अब 5 वर्कर्स एक मशीन पे काम कर रहे थे. या यहाँ 4 वर्कर्स वर वर्किंग ऑन 1 मशीन, नाउ
4 वर्कर्स आर वर्किंग ऑन 2 मशीन्स। तो यहाँ भी 2 इंपॉर्टेंट फैसले हम ले सकते हैं, कंक्लूजन ले सकते हैं। जो फैक्टर हम इंक्रीज करते हैं, जैसे लेबर है, इसको हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। क्या कहेंगे? हमारे पास लेबर और कैपिटल 2 फैक्टर्स थे, अगर हमने इनमें से लेबर को चेंज किया, इससे हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। और जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट रन में, इससे हम कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर, जैसे प्लांट है, मशीनरी है। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि ये जो शॉर्ट पीरियड है, इसे हम डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं कि ये वो पीरियड है जिसमें एक फर्म अपना आउटपुट बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, only by increasing the input of some variable factor, that's labor। thus यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम ले सकते हैं, ये जो वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है, इट इज स्टडीड विद रेफरेंस टू शॉर्ट पीरियड ओनली, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट ओनली बाय वेरिंग द वेरिएबल फैक्टर, जबकि लॉन्ग रन में हम पूरी स्केल ही चेंज कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज आवर सिंपल इंट्रोडक्शन विद प्रोडक्शन फंक्शन। हम आपको डायग्रामेटिकली भी ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप और फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है, इसकी डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। वी विल डिस्कस इंशाल्लाह दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए यू कीप इन माइंड दैट प्रोडक्शन फंक्शन इज सिंपली a technical relationship between physical inputs and physical output, and it's mainly of 2 types, the constant proportion type and the variable proportion type which we discussed, right। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।